پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ. حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر ہے. الحمدللہ گزشتہ یعنی کل کی صحبت میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا پیش کی، قرآن کی کچھ آیتوں کو پیش کیا اور ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا. ویسے تو پورا قرآن ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اب پھر آگے بڑھتے ہوئے یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے چند دنوں پہلے کچھ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو کچھ چیزوں سے نوازا، خاص کر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ہے ان کو نوازا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے ان کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا اور خانہ کعبہ کا متولی بنایا تھا. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا متولی بنایا، آپ متولی تھے. اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ موحد تھے، آپ ان بتوں کی پوجاؤں سے بیزار تھے اور شراب وغیرہ سے بالکل پرہیز، بلکہ شراب نہیں پیا کرتے تھے، ہاتھ بھی نہیں چھیتے تھے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی یاد زیادہ کیا کرتے تھے. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ آپ زمزم کی تلاش تھی آپ کو، کیونکہ یہ زمزم جو کنواں تھا پانی کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ٹھوکروں سے نکلا تھا اور بڑا متبرک کنواں تھا، مگر ہوا یہ کہ بعد میں لوگوں کی بے ادبی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو بند کر دیا، وہ گم ہو گیا، بلکہ صرف تذکرہ رہ گیا کہ ایک زمزم تھا، ایسا تھا ویسا تھا، ایک تذکرہ رہ گیا، مگر زمزم کہاں تھا کیا تھا کچھ بھی معلوم نہیں تھا. مگر حضرت عبد المطلب کو زمزم پانے کی بڑی شوق تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کے قبیلے کی چیز ہے وہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہوا کہ حضرت
ایک وقت حتیم میں آرام فرما رہے تھے. جب حتیم میں سوئے ہوئے تھے تو آپ کو خواب ہوا کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہا احفر طیبہ، یعنی طیبہ کو کھود. آپ نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ تو کہنے والا غائب ہو گیا. پھر دوسرے دن آپ اپنے بستر میں آرام فرما رہے ہیں، پھر وہی شخص آیا خواب میں، آ کے کہا کہ احفر برہ، برہ کو کھود. پھر آپ نے پوچھا کہ برہ کیا ہے؟ تو پھر غائب ہو گیا. پھر تیسری رات اسی طرح آپ آرام کر رہے ہیں تو پھر وہی شخص خواب میں آیا، آ کر کہا احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھود. تو آپ نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے؟ پھر وہ غائب ہو گیا. پھر چوتھی رات آپ آرام کر رہے ہیں، پھر وہی شخص آیا، آ کے کہہ رہا ہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھود. آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے اور کہاں ہے؟ وہ شخص اس دن غائب نہیں ہوا بلکہ تفصیل بتانے لگا. یہ کہنے لگا کہ زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے، یعنی تیری خاندان کی چیز ہے، وہ تیری میراث ہے. یہ چشمہ نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے. یہ ایسا کنواں ہے جس کا پانی ختم بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس کو وہ گر گیا، یہ ہو گیا، اس کو پھر باندھو، ہوتا نا کنواں وغیرہ کبھی خراب ہو جاتا، اس کو باندھنا پڑتا، مرمت کرنا پڑتا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جھوم کا تم جیسے کا ویسا رہتا. پھر اسے حجاج اکرام یعنی حج کو آنے والے سیراب کیا جاتا ہے. یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے. کیا بتا رہا ہے جگہ انہیں؟ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے. جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو دوسرے روز آپ اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ کدال لے کر آ گئے. یعنی آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اگر کچھ بھی کہیں گے تو لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. تو آپ نے کیا کیا، اپنے پاس ایک ہی بیٹے تھے اس وقت میں ان کے پاس، تو انہوں نے ان بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا. حارث کو لے کر کھودنے کی چیزیں لی اور کھود گئے اس جگہ جس جگہ بتایا گیا. اصاف اور نائلہ کے درمیان جہاں مشرکین بتوں کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے وہاں پہنچے. یعنی وہ جو مقام بتایا گیا نا گوبر اور خون کے درمیان، تو وہ جگہ تھی جہاں بھینٹ چڑھاتے تھے، یعنی جانوروں کو قتل کر کے بتوں کے نام سے بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، وہ جگہ تھی. دیکھا وہاں ایک سیاہ رنگ کا کوا چونچے مار رہا ہے. اور جا کر دیکھے تو باقاعدہ ایک کوا چونچ مار رہا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ یہی جگہ ہے. اب آپ نے کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی تہ تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکان شروع ہو گئے. آپ نے فرت مسرت سے نعرہ بلند کیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. کس کا نعرہ ہے یہ؟
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुजूर का। लोग कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद मुसलमान नहीं हैं, ईमान वाले नहीं हैं, मगर तारीख़ ये बता रही है कि उनके अंदर ईमान है, क्योंकि ये इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल हैं। और हुजूर ने एक जगह भी फरमाया कि मैं पाक लोगों से आ रहा हूँ। तो पाक का मतलब ही है ईमान। कुफ्र जो है वो नजिस है। बात समझ में? तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी बहस होगी हमारे दरमियान। अब ये सिर्फ मैं ये वाक़िया पढ़कर बताता हूँ कि नारा लगाया अल्लाहु अकबर। कुरैश ने इब्तिदा में तो इस काविश को सही ला हासिल समझते हुए, यानी इस काम को कुरैश ने बेकार काम समझा, समझकर हंसी मजाक उड़ाया करते थे। ये देखो ये इनको क्या हो गया, ये जमजम तलाश करने निकले हैं। वो कौन से ज़माने की चीज़ थी जमजम, अब ये निकले हैं जमजम खोद कर निकालूंगा मैं। ये होने जाने की बात है क्या? ये तो बेकार काम है जो कर रहे हैं बाप बेटे। जब मालूम हुआ, जब इम्कानात मालूम हो गए कि हाँ हाथ लग गया है, तो अब सब आ गए, आकर बोले कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, हम भी अरबी हैं, हमारा भी हिस्सा है, हम भी अहले कुरैश हैं, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हम भी इसमें हिस्सा लेंगे, हम भी खोदेंगे, हम भी करेंगे। अब ये बात हजरत को पसंद नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इतनी मेहनत तो मेरी और मेरे बेटे की हुई। अब जब साइन निकलने लगा, दिखने लगा कि कामयाबी होने वाली है, अब इस वक्त तो आ गए लोग, तो आपने मना किया तो झगड़े पर उतरा। और अरब का माहौल था, थोड़े थोड़े झगड़े में भी तलवार खींच लिया करते थे। खून-रेज़ी की सूरत हो गई, यानी सब तलवारें खींच लिए और हजरत से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। अब इनकी ताईद में कोई नहीं सिवा इनके बेटे के, कोई इनके ताईद में नहीं। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो ये तय पाया कि दोनों फरीक किसी को अपना सालिस मुकर्रर कर लें, आर्बिट्रेटर जो दरमियान में फैसला करे, क्योंकि बेकार जंग करना, झगड़े करना, खून बहाना ये तो बेकार है। इसके बजाय किसी को बीच में मुकर्रर करें और वो जो फैसला करेगा वो फैसले पर अमल किया जाएगा। ये बात तय हुई और जंग और खून रेजी से बचने की यही एक सूरत रही, तो ये फैसला हुआ। चुनाचे बनी साद बिन हुज़ैम की काहिना को हकम मुकर्रर किया गया। है ना, एक वो टाइम में काहिना कहा करते थे, आज मौलाना बोलते, बुजुर्ग बोलते, बोलते ना, आलिम बोलते, अल्लामा बोलते, बात समझ में? तो उस जमाने में काहिना, ये काहिना जो एक मुकर्रर किया गया, फरीक़ैन अपने अपने हमराइयों के साथ उसकी तरफ रवाना हुए। बनी सद का कबीला शाम की सरहद के करीब रहाइश पजीर था। रास्ते में चुटैल मैदान और बेआब गियाह सहराओं से गुजरना पड़ता था। इसनाए सफ़र हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। उन्होंने दूसरे फरीक से पानी तलब किया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये लोग शिद्दत प्यास से निढाल होते जा रहे थे। मौत सामने नज़र आने लगी थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने साथियों से मशवरा किया करके ये तय किया कि सब लोग अपनी अपनी कब्र का घड़ा खोद दें। जब कोई दम तोड़े तो उसे उसके घड़े में दफन कर दिया जाए।
आखिर में जो आदमी रह जाएगा, अगर उसको किसी ने दफन न किया तो कोई हर्ज नहीं, बजाय उसके के सबकी लाशें बेगोरो कफन पड़ी रहें। इससे बेहतर यह है कि आखिरी आदमी तजहीज़ो तकफीन से महरूम रह जाए। चुनाचे हर एक अपनी अपनी खबर का घड़ा तैयार कर लिया और मौत का इंतजार करने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कहा, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और मौत का इंतजार करना कोई जवामर्दी नहीं। उठो, जब तक जिस्म में जान है कदम आगे बढ़ाते हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला हमारे बचाने को कोई सामान मुहैया फरमा दे। चुनाचे सब ने अपने ऊंटों पर कजावे कसे और उन पर सवार हो गए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना ऊंट उठाया तो उसके पाँव के नीचे से चश्मा उबल पड़ा। पानी ठंडा भी था और मीठा भी। सब ने खूब सैर होकर पिया और अपने मशकीज़े भी भर लिए। आपने अपने साथियों को फरमाया कि दूसरे फरीक को भी कहो वो भी इस चश्मे से जी भर कर पानी पी लें और अपने बर्तन भर लें। बाज़ दोस्तों ने उस पर अपनी नागवारी का इजहार किया कि जब हमने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब हम उन्हें पानी से पीने की इजाज़त कैसे दें? अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, अगर हम भी ऐसा ही करें तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। यानी मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि अखलाक देखिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, निस्बत है ना हुजूर से। अब देखिए उनकी अखलाक कितनी अच्छी है। इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए, पानी मांगा और पानी नहीं दिए वो दुश्मन लोग, वो यानी अगेंस्ट लोग, जिसकी वजह से हाल इतना हो गया कि कहने लगे कि खुद अपनी अपनी खबरें खोद लो, क्योंकि जो भी मरेगा उसको दफनाता चले जाएंगे। अगर कोई आखिर में बच जाएगा बच जाएगा, एक अगर दफन ना हुआ तो सही, मगर अक्सर अगर दफन ना होंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए खोद लो। खोद भी लिए। उसके बाद भी फिर हिम्मत करे और करके कहा कि अल्लाह पर यकीन रखकर आगे बढ़ो, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो जब अल्लाह ताला पर यकीन जिसको भी होता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। तो यकीन अल्लाह पर रखें, यकीन अल्लाह ताला पर रखें। बात समझ में? ये करे तो हो जाएगा, वो करे तो हो जाएगा, ऐसा करे तो हो जाएगा, वैसा करे तो हो जाएगा। ये मोमिन की शान नहीं है, ईमान वालों की शान नहीं है। ईमान वालों की शान ये है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें। हाँ, मेरा रब मुझे मेरी मदद फरमाएगा। हाँ, मैं उसके दर पे सजदा करूंगा और उससे मांगूंगा। बात समझ में? मैं उससे मांगूंगा, मैं उससे पूछूंगा, मैं उसकी तरफ गिड़गिड़ाऊंगा। हाँ, उसे मनाने के लिए मैं उसके महबूब बंदों का वसीला लूंगा। बात समझ में? आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को एक अजीब रंग हो गया है पीरी मुरीदी का। हकीकत में पीरी मुरीदी तावीज पलितों का नाम नहीं है। वो जिंदगी को सुधार कर अल्लाह के बताए हुए तरीक पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के किरदार को देखकर, पाकर, समझकर हुजूर के अहकाम के पाबंद होकर चलने का नाम है पीरी मुरीदी। मगर आज हुआ क्या? आमिल बन गए। हर पीर क्या बन गया? आज आमिल बन गया। हर एक का काम क्या हो गया कि कुछ भी थोड़ी सी तकलीफ आई
अब पीर साहब को सुनाओ, अब पीर साहब अगर दुआ कर देंगे इनको हजम नहीं होता, पीर साहब अगर दुआ कर देंगे यकीन नहीं इनको। अब इनको यकीन क्या, कुछ तावीज दें, कुछ पलीते दें, कुछ फूल में नहलाएं, कुछ भी करें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। और एक चीज भी अब आजकल चलना शुरू हो गई है कि नामराज देखो, हम मोमिन होकर और खास कर पीरी मुरीदी यानी अहले तरीक होकर इस तरफ जाना कि देखो क्या हो रहा है, कल मेरा हाल क्या होगा, क्या मैं ये काम करूं तो होगा नहीं होगा। भाई वो तो तुम्हारे हाथ में है। इस्तिखारा करो, नमाज इस्तिखारा, इल्म हासिल करो, नमाज इस्तिखारा करो, अल्लाह ताला से पूछो। जो सरकार ने जो रास्ता बताया वो रास्ता इख्तियार करो, बात समझ में। और वो तमाम चीजें सीखने के लिए पीर के हाथ पर बैठ करो। पीर की जरूरत क्यों होती है, तुमको सिखाने के लिए, तुम्हारा मुस्तकबिल बयान करने के लिए नहीं। ये करे तो होगा क्या, वो करे तो नहीं होगा क्या, यहाँ ऐसा होगा क्या, वहां वैसा होगा क्या। अब यही तो चीजें बहुत बुरी हैं, यही चीजें बहुत ज्यादा होकर रास्ता वहाबियों को दरवाजा खुल गया। वहां भी निकल कर कहने लगा कि तुम मुशरिकीन हो। सूफिया, तमाम सूफिया को मुशरिक बना दिया। उसको रास्ता मिल गया, आराम से मिल गया, क्योंकि हमारा हाल यही होने लगा कि हम हर चीज को आमिल के पास दौड़ने लगे और आमिल को मुर्शद कहने लगे और उन लोगों के पास जाने लगे और वो बैत वगैरह भी ले लेते थे वगैरह वगैरह। आप लोग जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, और खासकर अहले तरीक में आने वाले ऐसे ही आते हैं। ये बिल्कुल गलत है ये सब। भाई सही है, तावीज अपनी जगह है, बात समझ में आई। कितने चीजें हैं, कुरान, पूरा कुरान है जो तुमको खुद ब खुद अमल कर ले सकते हैं, खुद ब खुद अमल कर। सूरह फातिहा में बहुत कितना 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 अल्लाह ताला ने बरकतें नाजिल फरमाया। 7 बार अगर पढ़कर किसी पर दम कर दें या खुद फूक लें, मुसीबतें टल जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बात समझ में। तो इस तरह अपने आप को संभालो, हर आन हर लम्हा ये इस तरह ये कि इनको पकड़ो, उनको करो, इनके देखो, उनको पूछो, उन्हों देख को बोलेंगे, इन्हों देख को बोलेंगे, नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। क्या देख कर बोलेंगे? मुखद्दर को कौन देख कर बोल सकता है, बात समझ में। मुखद्दर है, मुखद्दर को कौन देख कर बोल सकता है। तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों के पास कि भाई जरा इल्म की तरफ आओ, क्योंकि बहुत मसला बिगड़ते चला गया है। अरे भाई छोड़ो, कुछ लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको कोई फायदा पहुंच जाएगा ये समझ कर उतरे तो होता ही हो गया, ऐसा हो गया। पढ़ने वाला भी उसी में आ गया, ना पढ़ने वाला भी आ गया, अनपढ़ भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, सब आकर कूद गए इसी में। ऐसा नहीं होता। और खुद बरी हो गए, ना खुद नमाजें पढ़ रहे, ना खुद नवाफिल पढ़ रहे, ना खुद फराइज पर पाबंद है, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना वाजिब पर पाबंद है, बात समझ में, कुछ भी नहीं। और अपनी कुछ एक नई डगर लेकर चले। यहाँ देखिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, उस निस्बत का ये हाल है कि आपने कहा कि चलो हम निकले हैं, अल्लाह पर भरोसा करके निकलो। जो ही भरोसा करके निकलने लगे, अल्लाह ताला ने पानी से नवाज दिया और ऐसा पानी अता किया कि आप जितने भी आपके हमरा थे सब
बहुत कुछ पाए, सैराब हुए, और फिर दूसरों के यानी जो दुश्मन थे, जो हरीफ थे, जो अपोजिशन थे, कहा कि उनको भी जाकर कहो कि आए वो भी सैराब होए और पानी भर लें। अब लोगों को गुस्सा भी आया कि हज़रत जब हमने पानी मांगा वो तो पानी नहीं दिए, हमको मौत की घाट पर जाने के लिए छोड़ दिए, अब आप क्यों इस तरह कर रहे? तो मालूम हुआ ये अखलाक है, ये अखलाक है, रसूल अल्लाह की निस्बत का ये तकाजा है कि ये अखलाक है। अखलाक ये कहती है कि एक दूसरे की मदद करें। बात समझ में? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रखने वाले हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हैं। आपने ये कहा कि चलो सब प्यास बुझाएं और उनको भी कहो कि आए वो आकर सैराब हों। जब फरीक सानी ने आपकी ये करामत देखी तो कहा अब्दुल मुत्तलिब अब आगे जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया। जब ये करामत देखी किसकी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। जब ये करामत देखी कि आपका ऊंट जो ही उठा वहां से पानी निकलने लगा और मरने के लिए तैयार हो गए थे, गड्ढे खोद दिए थे, अब उनको सैराब हो, सब खुश हो गए, जिंदगी मिल गई। और बल्कि उन्होंने उन अपोजिशन को भी कॉल किया, बोला कि चलो तुम भी सैराब हो जाओ ये पानी से। अब उसके बाद जब निकलने के लिए निकलना शुरू किए तो उन लोगों ने रोक दिया, रोक के कहा कि हजरत अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, फैसला तो हो चुका, फैसला हो चुका। ये तुम्हारी जो करामत थी ये करामत दिखा दी। जब इसने इस लको सहरा में तुम्हारे ऊंट के पांव की ठोकर से चश्मा जारी कर दिया है तो जमजम भी सिर्फ तुम्हारा है, हम इसमें हिस्सेदारी का दावा वापस लेते हैं। चुनाचे दोनों गिरोह वापस आ गए। मतलब में किस तरह अल्लाह ताला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा और अजदाद की मदद फरमा रहा है, किस तरह मदद फरमा रहा है, और वो क्या थे। बात समझ में? अब फिर आए हजरत ने आके वो खुदाई मुकम्मल की और उस खुदाई में आपको क्या क्या मिला? सोने के 2 हिरन, कीमती तलवारें और जर हैं भी आमद हो गई। ये तमाम चीज़ें बंद करते वक्त में डाल के बंद कर दिए थे, वो तमाम चीज़ें आपको मिली। कौम ने उन चीज़ों से हिस्से का मुतालबा शुरू कर दिया। झगड़े ने फिर संगीन सूरत इख्तियार कर लिया। आपने कहा आओ बजरिए फाल इसका फैसला करें। फाल की ये सूरत तजवीज़ हुई कि 2 हिस्से काबा के, 2 हिस्से अब्दुल मुत्तलिब के और 2 हिस्से बाकी कौम के। खुरा अंदाजी की गई तो काबे के हिस्से के 2 तीर 2 हिरनों पर और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 2 तीर तलवारों और ज़रों पर पड़े और कौम के 2 तीर खाली निकले। आपने सोने के हिरनों को गलाकर सोने के पत्थर बनवाए और काबा शरीफ के दरवाजे पर मुंड दिए, यानी जो कुछ भी उसमें से निकला उसको गलाए, वो सोना था, और सोने से काबे के दरवाजे में लगा दिए। बात समझ में आई? तो इस तरह वो मामला ख़त्म हुआ और अल्लाह ताला ने फिर से जमजम अता कर दिया। अल्लाह ताला ने फिर से जमजम अता